तो कल प्रभु जी आए इस गृहस्थाम को, तो हम उनको पिकअप के लिए गए थे। तो प्रभु जी ऐसे कुछ प्रभु जी ज़्यादा बात नहीं की, मैक्सिमम 10-15 स्टेटमेंट, लेकिन उसमें बहुत सुंदर उन्होंने अपना एम्फेसिस दिखाया है, क्या सक्सेस के लिए क्या चाहिए। तो इसलिए जस्ट मैं श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़ता हूँ। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जो यानी अर्जुन बताते हैं ना, असंशय श्री है ना, वो यानी कृष्णास अर्जुन पूछते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ तस्साहम निग्रह मन्ये वायुव्रत दुष्करम। 6.33 अर्जुन पूछते योम योगस्त्वम प्रोक्ता समय में मधुसूदन। उसमें अर्जुन said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appeared impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. बताए चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुव्रत दुष्करम। For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. तो भगवान बोले, श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दो निग्रहम चंचल अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by the suitable practice, by suitable practice and detachment. Purport Prabhupada बोल रहे हैं, the difficulty of controlling the obstinate mind, as expressed by Arjuna, is accepted by the personality of Godhead. भगवान ने बोला सही है. But at the same time, he suggested that by practice and the detachment, it is possible. What is that practice? In the present age, no one can observe the strict rules and regulation of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. By the practice of Krishna consciousness, however, one engage in a 9 type of devotional service to the Lord. The first and foremost of such a devotional engagement is the hearing about Krishna. This is very powerful transcendental method for the purging the mind of all misgivings. The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detachment from the everything that draws the mind away from Krishna. The more one hear about Krishna, the more one become enlightenment and detached from the everything that draws the mind away from Krishna. By detaching the mind from the activities not devoted to the Lord, one can very easily learn Vairagya. Vairagya means detachment from the matter and engagement of the mind in the spirit. Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activity of Krishna. This is practical because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the spirit soul, the supreme spirit. This attachment is called Pareshanu Anubhava, spiritual satisfaction. It is just like the feeling of the satisfaction of a hungry man has for every morsel of food he eats. The more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and the strength. Similarly, by discharging the devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from the material objectives. It is something like the curing a disease by the expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activity of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. तो उसमें प्रभुपाद के परपट होते हैं.
For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult word. Next श्लोक है. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Krishna is about. For one whose mind is unbridled and self-realization is difficult. जिसका mind control नहीं है, उसके लिए self-realization difficult जाएगा. But he whose mind is controlled, who strive by appropriate. तो कल यही बात कर रहा था. तो कल मुझे नहीं बताया क्या, देख सकते ना. एवरेज मैन विथ लेजर फोकस कैन बी सक्सीड. तो ये ब्रूस ली का कोट है, लेकिन यहाँ से ही लिया है उसको फ्रेमवर्क किया. एवरेज मैन विथ लेजर फोकस कैन बी सक्सीड. तो कल कुंडली की बात चालू थी, है ना. इसका ऐसा है, हर्ष का ऐसा निकला, ऐसा निकला. तो प्रभु जी बताया कि इसका कितना भी अच्छा कुंडली है, लेकिन अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, समय कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना. लेकिन अगर वॉइस वर्सा देते, किसी समय खराब है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन है, तो सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो व्यक्ति नेचुरली कुछ ना कितना भी वो खराब है ना, सुप्रीम वो को कनेक्ट होगा, कृष्ण को कनेक्ट होगा. तो प्रभु जी बताया तो फिर एवरेज मैन जो ऑलमोस्ट ऑल कलयुग है विथ अ लेजर फोकस कैन बी सक्सीड. तो प्रभु जी इसमें ही बता रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे वहाँ, जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट है. जिसका माइंड कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल यानी फोकस्ड है उसका, तो उसमें बहुत डीप स्टेटमेंट है. देयर इज नो क्वेश्चन. प्रभुपाद के ऐसे कोट्स भी है कि कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तो उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है. एंड इट विल क्रिएट फॉर हिम मोर डिस्टर्बेंस, मोर मटेरियल डिजायर एंड अदर थिंग. जो अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए इट इज टफ है, बहुत है. उसमें मटेरियल डिजायर है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा. चैंट एंड बी हैप्पी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा. सेल्फ इट्स अ मस्ट, विदाउट दैट ही कांट. सेल्फ डिसिप्लिन इज द फोकस ऑफ द माइंड. The focus of the mind for what? SWOT analysis. वो डिसिप्लिन की बात नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो कितना भी उसका अच्छा योगा है, कहाँ भी जन्म लिया होगा, कहाँ भी लिया होगा, जो भी है, तिथि है कि जो भी है, लेकिन अगर व्यक्ति है ना, he is not, है ना, any mean he is not trying to be a discipline the mind, no question. तो हम कितना भी ये करें तो डिफरेंट रहता है. हमें यानी सेल्फ डिसिप्लिन बना मस्ट है, उसके बिना लाइफ यानी कितनी भी सुकृति है कुछ नहीं. योग भ्रष्ट हो जाते हैं ना सोचना. लेथार्जी द कॉज ऑफ फॉल डाउन, है ना. कितना भी उसका योग है, कुंडली अच्छी है, लेकिन अगर वो लेथार्जिक है तो उसका योग चला जाएगा. उसी बार कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो योग भ्रष्ट, उसका जो योग है सब भ्रष्ट हो जाएगा. तो अगर कोई इतना स्किलफुल नहीं है, कुछ नहीं, इतनी सुकृति नहीं है, लेकिन ही इज अ फोकस्ड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर व्हाट इज SWOT एनालिसिस. आपको पता है आप नहीं उठ पाते, आपकी वीकनेस है, तो आपने एयरपोर्ट में नहीं आना चाहिए. यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आपकी नहीं है, कैलिबर नहीं है, तो यू शुड नॉट कम. दैट्स वाई ना, ऐसे नहीं है. तो जब तो SWOT एनालिसिस एनालिसिस ही नहीं करता है ना. तो वी नीड टू बी मर्सीफुल ऑन वन सेल्फ. यहाँ लोग बेचारे टॉयलेट पे वहाँ होके फ़ोन लगा रहे कि आइए, बाकी तो है ना जो अपने ये तो उनके लिए तो है, लेकिन वो फोकस है ना, फोकस कहाँ होना चाहिए, लेजर फोकस. यानी वहाँ लेजर फोकस यानी यू कैन अंडरस्टैंड पहले तो कहाँ होना चाहिए लेजर फोकस. लेजर फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारे SWOT और वीकनेस पे. SWOT एनालिसिस जो स्ट्रेंथ, जो अपॉर्चुनिटी बनता है, और जो वीकनेस थ्रेड बनता है, उसको ओवरकम करने के लिए वो डिसिप्लिन होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी ना, अगर कोई साधक को या कोई भी प्रैक्टिशनर को अपने फील्ड में उसको अगर सक्सेस चाहिए तो उसको नीति नियम का पालन करना अनिवार्य है. माइंड इज नॉट एनिमी. अगर हम उसको उस प्रकार के पैलेटेबल वे अगर ये करता है, नीति नियम अगर कंफर्टेबल देता है, तो ही इज हैप्पी, उसको क्लैरिटी है.
लेकिन समस्या क्या, बहुत बड़ी समस्या ये है क्या, उसको पता ही नहीं कहाँ फोकस करना है। वो कोच के पास जाता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ फोकस। तो 50% तो वहीं आदमी हार गया है ना। तो वो कोच नहीं, उसको कोच को पता ही नहीं कहाँ फोकस करना चाहिए। He might be focusing on which is not supposed to focus. स्ट्रेंथ को तो फैसिलिटेट करना है, फोकस तो वीकनेस पे होना चाहिए। वीकनेस तो पूछते ही नहीं कोई। उस पर हम तो यानी स्ट्रेंथ में है तो वी आर ला 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 ला, वीकनेस इतना बढ़ जाता है, वीकनेस का जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस का जो इंटेंसिटी इतना बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ को ही देता है। बस वी नीड टू फाइंड आउट कहाँ फोकस करना है। तो फोकस करना है हमारे वीकनेस पे, क्या हाउ टू ओवरकम। वो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए देन वी नीड स्ट्रेंथ। विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदीनां रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्टाम। क्योंकि विदाउट दैट स्ट्रेंथ, हायर टेस्ट अटैच्ड टू द पंचाम भक्ति, वीकनेस को निकल ही नहीं सकता। वो पॉसिबल ही नहीं। कितना भी व्यक्ति है ना, कितना भी व्यक्ति ये हो, लेकिन वो जो परम दृष्टा नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है, जो स्ट्रेंथ उसको पंचांग भक्ति में नहीं डेवलप किया, और उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए बाय कीपिंग द माइंड फोकस्ड ऑन द वीकनेस, तभी होगा, है ना। तो वही था क्या, हमें पहले देखना क्या, वेयर टू फोकस। तो उसके लिए पहले जाना पड़ेगा हमारे कोच के पास, कहाँ मेरी गलती हो रही है। नहीं तो दैट्स व्हाट यू नो, इट्स क्रिएट अगर वो वीड्स क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेंथ में रह रहा है और वीकनेस पे वो नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल somebody is good in preacher, somebody is good in discipline, somebody is good in somebody good in some talent। वो स्ट्रेंथ में रहेगा तो वो प्राइड आएगा। वो भक्ति लता भी समझेगा, लेकिन कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, तो उसको इसमें लिखा है तो उसको प्रतिष्ठा पे वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए तो गाइड तो वो चाहिए ना, वो बताए क्या कहाँ फोकस करे, कहाँ नहीं करे, है ना। तो बिकॉज दैट्स व्हाट, अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है to disturb one's mind and others' mind also, है ना। लेकिन वो थोड़ा दती है, इसलिए चलो क्या करेंगे, ऐसी वाइफ नहीं मिली, बच्चे नहीं मिले तो या फिर है ना, एटलीस्ट थोड़ा समझो। वो ग्रेटिट्यूड से जी रहे, वाइफ तो होती तो कितना प्रॉब्लम आता है, या फिर बच्चे होते हैं ऐसे तो राम 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 सुसाइड ही करते, तो एटलीस्ट तो ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस। सर पूर्व जन्म में भी हमने तकलीफ दिया तो भगवान हमें 100% तो पूरा दे नहीं रहे। तो ये साधक को इम्पोर्टेंट ये करना पड़ेगा क्या, he need to be focused on his weakness and then परम दृष्टा निवर्तन्ते। वो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए he need to and he must be नीति में सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा ही। कल प्रभु जी का जो ये था ना, प्रभु जी कुछ बस 3-4 स्टेटमेंट बोले और वही बताए, तो जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एकदम ये नहीं बोले, यानी इट वाज डिफिकल्ट में उसका। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन है तो उसने 50% तो उसने अपना अचीवमेंट कर लिया, सेल्फ डिसिप्लिन जो है। फिर उसको ओबीडियंस की जरूरत है, तो फर्स्ट है ना। लेकिन जिसका सेल्फ डिसिप्लिन, वो प्रभु जी वही बताया। आप कोई भी कॉमन लेजेंड्स में देखो, प्रभु जी कल बता रहे थे, कोई लेजेंड्स में देखो एक कॉमन चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। वो व्यक्ति कितना सेल्फ डिसिप्लिन, उसका तो लीड्स टू सेल्फ। तो आप इसको हाथ मत लगाओ, वो मुझे एजिटेट कर रहा है, आपको भी है ना। तो हाँ, वो एडिटेट करता था। तो हाँ प्रभु जी बताया लेजेंड्स, उनका सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, वो सेल्फ डिसिप्लिन। और फिर वो स्पिरिचुअलिस्ट हो, मटेरियलिस्टिक हो, बिजनेसमैन हो, कोई हो। तो पहला तो फैक्टर क्लियर है कि हमें फोकस, हमें कोच के पास जाना है, मेरा वीकनेस कहाँ है, या फिर हमें वीकनेस देख के उस पर फोकस करना है। ये अभी कैसे करें, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बस स्टिल इसमें क्या, अगर फोकस्ड होना है, जैसे लेजर फोकस्ड मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए,
मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स कॉन्सेंट्रेट, है ना, फोकस्ड। इसके लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो पहले तो एक्सपोजर हो, पहले तो एक्सपोजर हो गुरु से, क्या ये वीकनेस है और मुझे सेल्फ डिसिप्लिन मस्ट है। कितना भी प्रार्थना है, कुछ भी हो, कुछ भी, बट दैट व्हाट डजंट कम सेल्फ डिसिप्लिन, नो नो क्वेश्चन, नो रेसिप्रोकेशन। रोजी यही बोलते, साधु संग प्लस शरणागति, शरणागति इज नथिंग बट इज डिसिप्लिन, एंड साधु संग इज नथिंग बट अ एक्सपर्ट गाइडेंस, जो मटेरियलिस्टिक वे में सक्सेस के दो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। साधु संग द एक्सपर्ट शेल्टर जो हमें बताएंगे, और डिसिप्लिन यानी शरणागति। तो पहले एक्सपोजर हमें पहला पता तो चले क्या क्या डिसिप्लिन का ये है, हमें उसके प्रति कुछ इच्छा तो जागरूक हो, अवेयरनेस हो, क्योंकि जब अवेयरनेस होता तो इच्छा प्रकट होनी चाहिए। फिर दूसरा, अगर एक्सपोजर मिला तो उसके लिए फिर हमें वॉर रूम करना पड़ेगा। ऐसा वी नीड टू ऑलवेज सी इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फोटोज, है ना। तो ऐसे हमारे जो गोल्स है, जहाँ हमें फोकस्ड करना है ना, लेजर फोकस, तो हमारे सामने हमेशा है। उसका मैक्सिमम जो है उसका हमारा इंटरेक्शन हो, या उसका यानी क्या सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस माइंड पे उसका एम्फेसिस हो, तो ऐसा हो तो उसमें हमारा पहले तो बताएंगे कि अपने एक्सपर्ट का ये है। फिर उसके लिए हमें एक सेक्यूजन में एक हमारा जो भी है, जो भी फैसिलिटी हमारे अकॉर्डिंग लेवल के अनुसार है, तो वो हमें ज़्यादा एम्फेसिस करेगा, जहाँ सब कॉन्शियसनेस माइंड को हमें वो हैमर करेगा। तीसरा, फिर जब हम वो नट शेल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि तो एक्टिव है, तो उसके लिए कॉन्शियस होने के लिए, बी कॉन्शियस के लिए हमें इक्विपिंग होना पड़ेगा। ट्रैक रूल ऑफ 5 हो, ट्रैकिंग हो, मेजरमेंट हो, जिससे जो हमें नट शेल में हमने जो चार्जिंग की, उसका चार्जिंग बचाने के लिए और डेविएशन बचने के लिए हमने वो कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस करने के लिए जो संकल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रैकिंग चाहिए। चौथा, अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे पास कोई तो भी अकाउंटेबल पार्टनर हो, ये भी पनिशमेंट हो। अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही, पनिशमेंट नहीं बताऊंगा, है ना। तो 5000 का फाइन जो गृहस्थ है, जो हमारे, दे दीजिए। ब्रह्मचर्य को क्या, पूरा आश्रम टॉयलेट लेने एकदम क्लीन, ऐसे। और कुछ है उसके अंदर, अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए इच्छा है तो ही नो, तो नहीं, तो ये तो बात जिनकी है, जिनकी स्व इच्छा है, जिसको सही में कृष्ण कॉन्शियस कोई फील्ड में उसमें, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं चलता। जिसकी इच्छा नहीं, ही इज नॉट इन एट ऑल इन्वॉल्व हियर। और फिर पांचवा, वी नीड टू रिपोर्ट टू सुपीरियर। हमें इसके लिए कोई हेवी पनिशमेंट हो, या हमारे पास कोई पार्टनर हो, प्रभु प्रसाद ले रहे 32 टाइम्स चिव कीर्तन, ऐसा कोई तो चाहिए, क्योंकि समटाइम्स, बिकॉज यहाँ तो हमें कोई तो अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए ही, क्योंकि हमारा से घन तरला विडो विकल्प संकल्प कौमदिनी, संकल्प विकल्प ऐसा है। ये तो नेचुरल है, कभी एकदम उत्साह लगे, दूसरा नहीं लगे, इसके लिए तो पार्टनर होना ही चाहिए। फॉर्चुनेटली होगा तो, है ना, तो काम बनेगा और फिर रिपोर्ट करें। तो ये फोकस्ड लेजर, फोकस्ड, क्योंकि फोकस्ड कब आएगा उसमें मैग्नीफाइंग। आपको ऐसा कुछ तो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये दीवार निकाल दीजिए, लाइट की रोशनी कितनी बढ़ेगी, लाइट का जो एफल्जन कितना नहीं आएगा, तो उसको करना पड़ेगा ना। फोकस्ड के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़ेगा, तब तो वो फोकस्ड होगा। विदाउट ऐसे लाइट ऐसे ले तो नॉट, सनलाइट के जितना सनलाइट के कंपेयर में कुछ भी नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शन है, उसमें फोकस होना है, तो उसके लिए चाहिए। और फिर निकलने के बाद भी उसको ट्रैकिंग मेजरमेंट दे करे, डिस्चार्ज हुआ फिर से। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ अस इसमें हो जाता है कहाँ फोकस करना, यही प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमें वैल्यू पता नहीं है। वी आर लास्ट 17 years, 15 years, 10 years from childhood we have born up and brought up in while honoring prasadam, and still we are not disciplined. क्या किया हमें वैल्यू पता नहीं।
इसीलिए जैसे आप देखेंगे कोई भी हमारे स्पिरिचुअल लिस्ट में भी अगर लेजेंड्स हैं राधेश्याम को, IIT पवई, एमटेक गोल्ड मेडल, प्रोग्रेस एग्जाम्पल भी जैसे गौरांग बोर्ड जो है ना, जो भी स्पिरिचुअल लिस्ट में भी आप देखेंगे ना, तो पहले दे वर डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि दे वर जो भी हमारे लेजेंड्स है वो पहले सेल्फ डिसिप्लिन थे, तो फिर उसके बाद ओबीडियंस, एक्सपर्ट शेल्टर, एक सेल्फ डिसिप्लिन थे, उसके बिना तो कोई रीडिंग हियरिंग चैंटिंग में तो इट विल जस्ट क्रिएट वीड्स विदाउट दैट। या जैसे फॉर एग्जांपल वीड्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेशली फॉर द ये कॉमन अज्ञात सूरज जो इंटेंशनली ग्रो करना चाहते हैं लीडरशिप के लिए, स्पेशली ये जैसे फॉर एग्जांपल हम सेवा में रहे, वो हम स्ट्रेंथ में, लेकिन हमने वो वीकनेस पे ये नहीं किया, फोकस नहीं किया क्या सेवा करते समय अगर अपराध हो गया तो क्या, सेवा करे और अपराध, तो चैंटिंग रीडिंग हियर के लिए टू कोड टू प्रूव आई एम राइट। जैसे मैंने एक भक्तों को आज 2 एग्जांपल दिए कि वो डिवोटी इतने सिंसियर थे, हमारे इसमें थे क्या, सुबह 2:30 बजे उठते थे, 64 करते थे, मेरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, 2:30 बजे थे 64 करते थे, लेकिन इज नो मोर इन दिस नो। और जो ऑलरेडी थे वो गेस मत करिए वो तो, और वो इतने यानी गुरु के प्रति ये था, वो भी बताएंगे क्यों, एक प्रति इंटेंस प्रैक्टिस ये था, लेकिन जैसे अपराध पे वर्क ही नहीं किया, हाँ वीकनेस पे वर्क ही नहीं किया। मैं तो एकदम होता था बेचारा, वो सुबह 2:30 बजे उठता था, चैंटिंग करता था, मंगल आरती करता था, हरिनाम संकीर्तन के लिए जाता था, और दूसरे भक्तों के साथ वो फंड रेजिंग प्रोग्राम आने के बाद विदाउट सोइंग विदाउट स्लीपिंग और चैंटिंग, बचपन से इतने ये थे, बट एक केयर नहीं की, फोकस हट गया, स्वॉट एनालिसिस पे नहीं था, स्ट्रेंथ पे फोकस, वीकनेस पे नहीं, तो पहले तो हमें ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके बिना तो इनिशियली तो एटलीस्ट ठीक है, जो जिनको इंटेंशनल प्रैक्टिस करना है, सुकृति बढ़ाना है, लीडरशिप रोल पे देने, उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना चाहिए। बाकी जैसे नए भक्त उनकी अलग की बात है, कैसे उनको बंद कर दोगे, इनकी बात, जो नए भक्त है उनको भी अलग की बात है, उनको अज्ञात यानी जिसका सुकृति फलीभूत है और उसकी इच्छा है कि मुझे प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस करना है, उसके लिए। बाकी जो नए भक्त हैं उनको विचार जैसे कहते हैं ना, लेकिन जो इंटेंशनली जिसकी इच्छा वो आ रही है कि मुझे शुद्ध भक्ति करना है, गुरु गौरांग के प्रति मुझे शरणागत रहना है, ये लेजर फोकस्ड आवश्यकता है, तभी ये करेगा। तो उसको ज्ञान शीट, ज्ञान बुकलेट, ये अपना उस प्रकार का इन्वायरमेंट करे, तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फॉर वन whose mind is unbridled self-flagellation is difficult work, नहीं समझना पड़ेगा, वो नहीं है, यानी हमें यहाँ भी हाथ डालना, यहाँ भी हाथ डालना, यहाँ भी हाथ डालना है, तो हम हमारे हाथ चले जाएंगे, है ना। तो बस वही था, बाकी तो कुछ नहीं। कल रोज ने भी बताया, मैंने खुद के लाइफ में देखा क्या, ठीक है कुछ योग अच्छे, ये अच्छे, लेकिन अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनूंगा तो आई बी लॉस्ट। तो मैंने कल शायद मेरे द्वार लग रहा है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, है ना। तो फर्स्ट फोकस सेल्फ डिसिप्लिन, वो फोकस जो हमारे संकल्प पर, स्वॉट एनालिसिस पे वो किया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, अवेयरनेस तो आएगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को प्रश्न है तो अगर मतलब कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, तो मेरा कि अगर उसने लॉलियम के ऊपर काम किया, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन में तो नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो अगर पहले उसने डिजायर पे अगर काम किया, डिजायर को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन में आ जाएगा। हाँ, जैसे यानी प्रोजी का प्रश्न ऐसा है कि अगर हम लॉलम पे वर्क करते सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाए, तो जैसे
लौल्यम कहाँ आता है? लौल्यम आता है क्या, जैसे उसमें भी बताया भक्ति रसामृत सिंधु में स्वरूप गोस्वामी पाद प्रभुपाद वहाँ बताते हैं लौल्यम जो डिवोशनल लता भी जाती है संग से। जब व्यक्ति संग करता है तो उसको लौल्यम, तो संग है नहीं, उसको संबंध है, संबंध है तो वो व्यक्ति के लिए वो करेगा। जैसे ना जैसे बोलते ना कोई जिम्मेदार नहीं दूसरी शादी कर दो, है ना, तो ये ना, तो क्या करते, तो क्योंकि वो क्या अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर रहने भी नहीं देते, चलो निकलो, है ना। तो लौल्यम आता है संग से। संग इज नथिंग बट संबंध, संबंध है तो सेल्फ डिसिप्लिन है, उनके लिए करे यार। ये संबंध को और जैसे elaborate जैसे अगर संबंध को बनाना कैसा संबंध, बनाना कैसे है, फिर एग्जैक्टली संबंध मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियली देखते हैं तो कोई ब्रह्मचारी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, तो अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अभी नाम लेना चाहिए ना लेना चाहिए, जैसे मैंने करुण गौरव को बोला क्या प्रभु जी आ रहे, तो अभी तो थोड़ा सा विचार उसका घर का फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो वो पूरा रात दिन वहाँ ही घूम रहा है का बिजनेस के लिए, क्योंकि लोन भी बहुत है और वो तो उनके पास तो मैटर है। तो मैंने उसको कल फ़ोन किया, तो मैंने बोला यू नीड टू बी विथ प्रभु जी 3 दिन रहो, क्योंकि एक तो प्रभु जी का अपॉइंटमेंट भी लो, लेकिन आप प्रभु जी के साथ रहोगे तो आपको ऑलरेडी आपके शिक्षा गुरु से अटैचमेंट है, तो आपको फ़ायदा भी होगा। प्रभु जी भी बताएंगे, प्रभु जी ने उसको करेक्ट भी किया कल। तो वो कैसा हो गया, उसको बहुत एंगेजमेंट था, लेकिन प्रभु जी से अटैचमेंट है, तो उसने सब छोड़ छाड़ के 3 दिन प्रभु जी के साथ रह रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रभु जी के साथ अटैचमेंट है, तो प्रभु जी ने उसको करेक्शन दिया, वो जिंदगी में वो चीज़ अगली बार नहीं करेगा, है ना, समझ ना। तो क्योंकि जो अटैचमेंट है ना, वो लेवल लेवल के अनुसार, तो उसमें क्या होता है, तो वो व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल। तभी वो प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ये है, और मैं जस्ट प्रैक्टिशनर 5-6 साल का हूँ, प्रभु जी मुझे इतने ही दे रहे, अटैचमेंट है, प्रभु जी का अफेक्शन मुझ पे है, तो उसके लिए वो चीज़ कभी ये नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा, पूरी ताकत करेगा, और फिर रेसिप्रोकेशन होगा, यानी और फिर स्पिरिचुअल लाइफ में वो रेसिप्रोकेशन होता है कि फॉलो डिसिप्लिन देन मर्सी कम्स। तो हाउ इट हेल्प, बिकॉज ही हैज अटैचमेंट। तो कल प्रभु जी ने उसको बताया ऐसा नहीं करना, लिख लिया उसने फटाक से, अब जिंदगी में नहीं करेगा, है ना, तो कैसे सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। तो जो संघ से ही तो डिजायर आता है। जैसे आज हम ऑल फाइंडिंग क्रिटिसिज्म इसका ये नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु जी की थोड़ा सा फिर ट्रीट हो रही सुन के, तो हम नहीं करेंगे, है ना। दश अपराधी छाड़ी ना मेरे ग्रहण, यह नहीं पुण्य भजन, यह नहीं पुण्य साधना भजन, है ना। यदि क्या अतएव, मैं 6 महीने से मैं 6 महीने से आपको अतएव यदि लोभ होए दश अपराध छाड़ी करी नामाश्रय, एक एक का नाम सतर्क हो गया, हाँ पैसा। तो क्या अगर कोई सही में उसको नैपुण्य भजन करना है, तो उसको 10 अपराध छोड़ के भजन करना। अतएव यदि लोभ आए, उसको लोभ आए, तो ये प्रभु जी के कारण ये करते, इसलिए इसमें कौशल राम को कोई बल होता है, और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट है ऑल फाइंडिंग क्रिटिसिज्म। कल दोनों को भी बुलाया था मैंने, अरविंद को, यू नीड टू फोकस। तो मैंने कल आज 2 एग्जाम्पल उनको इसलिए दिए, क्या देखो आप सेवा कर लेंगे, सेवा किसके लिए करने का, हम कृष्ण प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो, लेकिन सेवा के समय वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड कैलकुलेटेड। तो मैंने उनको कल भी बोला, आज बोला, यू नीड टू ऑलवेज बी वरी। उनको रूल ऑफ 5 बताएगा, किसी का फ्लॉ देखता है डिटैच होकर सुपीरियर को बता दो, आपको फ्लॉ देखता है तो बोले तो बेचारा है ना, प्योर आत्मा 3 गुणों में फंसा है, जैसे मैं फंसा हूँ, तो उसके लिए प्रार्थना करो। तीसरा, शाम के समय ने क्या कीर्तन लगाओ गुरु महाराज का, ये करो, और जो भी है उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि चीपली है ना। वैसे 5 पॉइंट, तो इसलिए ये, तो मैंने उनको आज लगा कि एक एग्जाम्पल भी वहाँ लिख लो।
तो यही है, फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है वीकनेस, है ना, वीकनेस डिस्ट्रैक्ट, वीकनेस हमें फोकस करना है और फिर उसके परम दृष्टा निवर्तन है। तो लेकिन ये हमें जानना पड़ेगा कितना, इसलिए भी लिखा एवरेज मैन, इसमें नहीं एक्सपर्ट मैन नहीं बोला। याद है राधेश्याम वो भी एक क्लास में बताया कि एक नॉर्मल मैन ऐसे बताया गया, इफ ही इज डिसिप्लिन ही कैन बिकम सुपर ह्यूमन, सुपरमैन, ऐसा कुछ तो नहीं प्रोड्यूस हुआ। नीति नियम चाहिए, अगर नीति नियम नहीं रहेगा तो डिफिकल्ट है, कितनी भी सुकृति हो, एकादशी के जन्म हो या फिर क्या वापस आएगा ही। तो साधु संग शरणागति, ठीक है। और क्या? ठीक है। तो पहला पार्ट है कि पहले देखिएगा कहाँ डिसफोकस्ड करे, यानी किसी को ग्रॉस ही नहीं तो वो सटल पे फोकस क्या करेगा, ग्रॉस ही नहीं है वो सटल पे फोकस क्या करेगा, तो उसके लिए एक्सपोजर के कहाँ फोकस करे, फिर उसके अनुसार उसको नटशेल बनाना पड़ेगा, जो हमेशा उसका जो वीकनेस और स्ट्रेंथ को फोकस करेगा। फिर उसको ट्रैकिंग करने पड़ेगा, फिर उसके लिए ट्रैकिंग के लिए उसका अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए, कोई तो भी इंस्पायर करने वाला। और पांचवा रिपोर्ट करना पड़ेगा सुपीरियर को, और लास्ट इम्पोर्ट फंडामेंटल का उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसकी इच्छा ही नहीं तो देयर इज नो, है ना, डिजायर, कृष्णा ने जो फ्री विल दिया, ठीक है। ओके, तो इसी किसी का प्रश्न इधर नहीं, चलो थैंक यू वेरी मच।